Hello everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. Today we're going to talk about ICSE or ISC class 10th from class 9 to 12th. Okay, English grammar, a very important topic. Okay, a very important topic, that is tenses, right? So today we're going to talk about tenses in one shot, right? We're going to complete 12 tenses in one shot, right? We know there are 12 tenses, isn't it? Total 12 tenses. Okay, so we're going to complete whole tenses in just one video. Okay, now this part, tenses part, is very people think it very difficult. Okay, they used to think that it is very tough uh, thing in English. Okay, but no, it is one of the most easiest thing, isn't it? And this is one of the most important thing as well, because just think, okay, if you don't know tense, how you will write composition or comprehension, later notice, even a single fraction of English. Okay, so without tenses, you are not going to attempt a single fraction of your English language or literature paper as well, because you have to make the tense according to the things, right? You have to make the sentences according to the tense only, right? So if you don't know tense, you're not going to write you're not going to write a single answer in your a single answer of single question. Okay, so tenses are very important. Suppose there is a composition, write a paragraph on this. So if you don't know tense, how you gonna write this paragraph? Okay, in Hindi we know, right? In Hindi we know, but in English we do not know. Okay, so for an adequate writing, okay, for a senseful or for a beautiful composition comprehension, you should know these tenses. Okay, and seriously guys, tenses are one of the most important aspect of our life, because whenever some people think, they say that we are unable to speak English. Okay, we cannot speak English. Okay, still some guys, they are in ICSC, they are unable to speak English. Okay, why? Because of lack of tense knowledge of tenses, isn't it? Because of lack of knowledge of tenses, that's why they are unable to speak English, right? So these are very important orally, okay, and in a written passive as well. Okay, so to write an adequate answer, a perfect answer, you should remember these tenses. Okay, and you did not like remembering it. Okay, do not remember it, do not just doing the remembering of these tenses. Okay, you have to you have to understand the concepts of each tenses. Okay, each tenses have three things. Okay, subject, verb form, either it is one, two, three. Okay, and then what? Object. Okay, and some rules according to that as well. Okay, so each tense is having these things in common, so you have to remember these things only. Okay, now let's see what is the meaning of tenses. Okay, for you guys, what is the meaning of tenses? For you, the meaning of tenses are, right, for you the meaning of tenses is tension, isn't it? For you guys, the meaning of tenses is tension, right? But for for other guys, the perfect meaning which should be there of tenses is, if we say in Hindi, it is known as kal, right? Kal. Or a very perfect English, if I speak so, then it is known as, oh my god, just wait, sorry for my Hindi writing, right? Samay.
ओके, फॉर परफेक्ट इंग्लिश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल? समय, ठीक है। काल का मतलब क्या होता है? समय। और टेंस एक वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो समय को बताए, जो टाइम को बताए कि कौन सा टाइम अभी चल रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? काल। उसे क्या कहते हैं हम? टेंस, ठीक है। टेंस का मीनिंग होता है काल, मीन्स समय। ओके, सो इतनी बात आई होप समझ आ गई होगी। लेट्स सी व्हाट आर टेंसेस। तो टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। क्या होती हैं? ये वर्ब्स की फॉर्म होती हैं जो कि क्या शो करती हैं कि कोई चीज़ किस टाइम में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। ओके, मतलब कोई भी काम किस समय हो रहा है, उस समय को बताने के लिए हम टेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ओके, आई एम टीचिंग यू, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ। अभी कहाँ कर रहा हूँ? ये प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ मैं। ओके, मैंने कल पढ़ाया था। था मीन्स ये पास्ट की बात हो गई, जो बीत गया है, जो अब नहीं आएगा लौट कर, बीत चुका है वो चीज़। ओके, तुम कल पढ़ाओगे, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा, अभी मैंने वो काम कंप्लीट किया नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा। या तुम इस वीडियो को देखोगे, तो तुम लोगों ने अभी इस वीडियो को देखा नहीं है, तुम लोग देखोगे इसे, राइट। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट को हम कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट को हम कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को हम कहते हैं भविष्य काल, राइट। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, जैसे कि तुम लोग जब वीडियो देखोगे तब वो वर्तमान काल हो कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, राइट। पास्ट काल मतलब सॉरी मीन्स पास्ट टेंस कब होगा? पास्ट टेंस तब होगा, मतलब भूतकाल तब होगा जब मैं इस वीडियो को बना चुका हूँगा और तुम लोग इसे देख रहे होगे, तो तुम लोग कहोगे कि मैंने इस वीडियो को बना दिया है और अब हम इसे देख रहे हैं, राइट। और फ्यूचर क्या होगा कि कल मैं एक और वीडियो डालूँगा, मतलब जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, ओके। जो काम पहले ही कंप्लीट हो गया वो पास्ट है, और जो काम होगा आगे चलकर, ठीक है, जो काम आगे चलकर होगा वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, सो 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ टेंसेस। टेंस को 2 चीज़ों में तोड़ो। नंबर 1, दिस ई, इसे अलग हटाओ, और ई एन, इस टी को अलग हटाओ, और ई एन एस ई को अलग हटाओ, तो क्या निकल के आ रहा है? टी मीन्स टाइम, ओके, एंड एंस मीन्स सेंस, मतलब टाइम के सेंस, और टाइम को सेंस करना कि कौन सा टाइम चल रहा है अभी, ओके, कौन सा टाइम चल रहा है अभी, या वाक्य में जो सेंटेंस में टाइम बोला है वो कौन सा टाइम है, उस टाइम को सेंस करना, यही हमारा टेंस होता है, ठीक है। सो टू सेंस द टाइम विच टाइम इज गोइंग ऑन इज नोन एज व्हाट? टेंस, राइट। टेंस का हमने अच्छे से मीनिंग समझ लिया कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है जो कि टाइम को डिनोट करती हैं, टाइम को बताती हैं कि कौन सा टाइम अभी चल रहा है, ओके। इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट। लेट्स सी द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ टेंसेस। ओके, ब्रॉडली टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं जो सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे कि मैं अभी बताया था, व्हाट इज प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है काम, व्हाट इज पास्ट, जो हो चुका है काम, और व्हाट इज फ्यूचर, सॉरी, व्हाट इज फ्यूचर, जो आगे चलकर होगा, ओके, जो आगे चल के काम होगा उसे फ्यूचर कहेंगे, ओके। सो पास्ट, प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा द वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक है, द वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, ठीक है। पास्ट क्या होगा? द वर्क इज डन, काम हो चुका है। और ये क्या होगा? फ्यूचर, द वर्क विल हैपन, ओके। फ्यूचर क्या होता है? द वर्क विल हैपन, काम होगा आगे चलकर, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। हम प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? प्रेजेंट में हम इन शब्द, ब्रॉडली इन शब्द का यूज़ करते हैं, इज,
आर एन। प्रेजेंट में ब्रॉडली इन्हीं शब्द का ज़्यादा यूज़ होता है प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट में हमारा होता है वॉज और वर का, ओके, दिस इज वर, वॉज वर का। फ्यूचर में विल एंड शैल का यूज़ होता है। ब्रॉडली ये शब्द यूज़ होते हैं। प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल एंड शैल, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं इनके चार चार और होते हैं, ऐसे समझ लो। ये जो प्रेजेंट, जस्ट वेट, जो ये प्रेजेंट पास्ट और ये फ्यूचर है ना, ये हैं पेरेंट्स, ये है फादर, ठीक है, ये है फादर, ये तीनों कौन है, पापा है, फादर है, ठीक है, ओके। इनके ये चार चार और होते हैं पार्ट्स, तो वो उनके सन हो गए, ठीक है। जब मैंने याद किया था इन्हें छोटे पे, ओके, ये टेंसेस मैंने बहुत छोटे पे कर लिए थे, बहुत ज़्यादा छोटे पे, व्हेन आई वाज जस्ट अ स्मॉल किड, तब मैंने 12 के 12 टेंसेस कर लिए थे, ओके। सो ऐसे याद करो कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है ना, ये तो होते हैं पेरेंट्स, और इनके चार चार पार्ट्स होते हैं, वो उनके होते हैं सन। अब उनके चार चार पार्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ये चार होते हैं। और इन्हीं से हमारे टेंसेस होते हैं, बस यही टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, ओके। 4 टेंस हुए ना तीनों में, तो कितने हो गए, 12 टेंस हो गए टोटल, कितने, 12 टेंसेस हो गए, तो सारी। तो इन तीनों के चार चार और पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अकॉर्डिंग टू टेंस हम उसके आगे लगाते हैं, जैसे प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से हम लगा देते हैं इन सब के आगे, ठीक है। तो ये तो कुछ हमारी ब्रॉड कैटेगरी हो गई, ओके। सो दीज आर ब्रॉडली ऑफ 3 टाइप्स। हमने तीनों टाइप्स के देख ली, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट सॉरी, जो काम हो रहा है अभी, ओके, जो काम आधा हो चुका है, आधा हो, हाँ मतलब अभी बाकी है, ओके, वो होता है प्रेजेंट। पास्ट जो काम पूरा ही हो चुका है, गुजर गया है वो, ठीक है, पास्ट हम कहते नहीं हमारा पास्ट है, ठीक है, उसी तरीके से समझो। एंड फ्यूचर जो आगे होगा, ठीक है, जो आगे होगा, अभी हुआ नहीं, आगे होगा। जैसे कल, जैसे कि लेट्स सपोज कल मंगलवार है, ठीक है, तो कल मंगलवार है ना, आज तो सोमवार है, कल मंगलवार है, तो इसलिए ये हो गया फ्यूचर। अब इनके चार चार पार्ट्स और होते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सब डिविजन्स ऑफ टेंसेस, सब डिविजन्स ऑफ टेंसेस क्या क्या होते हैं। प्रेजेंट के अगर हम उस फॉर्मेट में देखें तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एंड फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चारों पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो ब्रॉडली 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। हिंदी में समझो, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है। उनकी चार चार पार्ट्स और होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस इस तरीके से याद कर लो। ये तो हो गए हमारे चार चार पार्ट्स के, ठीक है। हमने देखा अभी टेंसेस, 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके चार चार भाई और होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दैट्स इट, ओके। बस इन्हीं के रूल्स आपको याद करने, इन्हीं सब के रूल्स आपको याद करने, इन्हीं 12 टेंसेस के आपको रूल्स याद करने हैं। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। योर टेंस वुड बी ओके, यू विल बी द प्रो ऑफ टेंसेस, ओके। सो लेट्स सी, अब देखते हैं हम टेंस चार्ट को, ओके। अब हम टेंस चार्ट को देखते हैं, ओके। एवरीथिंग, आई होप एवरीथिंग इज डन, ओके। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस चार्ट को, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही हमारे फॉर्मूलाज हैं सारे, ओके। अगर ये सारे टेंस आ गए, सब आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब के टेंसेस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी फॉर्म्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, प्रेजेंट सिंपल को। अब प्रेजेंट सिंपल तो मैंने बताया नहीं है क्या होता है प्रेजेंट सिंपल।
प्रेजेंट सिंपल होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। ओके, प्रेजेंट सिंपल को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, तो डू नॉट कंफ्यूज। ओके, प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं, इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, इंडेफिनिट। ओके, दोनों ही से कुछ भी कह सकते हैं। जैसे पास्ट सिंपल हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट। ओके, फ्यूचर सिंपल हो गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इन सिंपल मीन्स इंडेफिनिट। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का फॉर्म क्या है? ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। ओके, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर एस या एस लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस या एस लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से इसकी पहचान होती है इंडेफिनिट की, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग जाता है। समझ आ रही बात? ये होता है हमारा बनाने का रूल। ठीक है, जैसे कि सारा गोज टू पार्क बाई ट्रेन। अब सारा यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, सारा यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस या एस लगता है। ठीक है, जो ये जो टेंसेस होते हैं इसमें क्या होता है कि जो सिंगुलर होता है उसमें उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। ठीक है, सिंगुलर टेंस जो होते हैं, सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर होती है, एक प्लूरल होती है। राइट, सिंगुलर मीन्स एक वचन जिसमें एक ही के बारे में बात हो रही है, प्लूरल मीन्स बहुत सारे लोग जिसमें बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। सॉरी। ठीक है, तो जो सिंगुलर होते हैं, ओके, इन टेंसेस के मतलब अगर हम उससे देखें इसके पर्सपेक्टिव से, तो जो एक वचन होता है, ओके, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस के एस लगता है। ठीक है, और बहुवचन होते हैं जो उसमें क्या होता है? ओके, सो अगर देखो यहाँ पे एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगता है, जैसे कि इसमें लगा है सारा। देखो सिंगुलर है, यहाँ पे सारा जो है वो कौन है? सिंगुलर है, इसीलिए इसमें वर्ब जो है ये गोज, गो है जो, इसमें एस एस लगा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लूरल होता, जैसे कि यू हो गया या कोई भी प्लूरल होता, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, क्योंकि उसमें एस एस नहीं जोड़ते। जैसे वे पार्क जाते हैं। ओके, जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ वे पार्क जाते हैं, तो दे गो टू द पार्क, दे गो टू द पार्क। गोज नहीं लगेगा, गोज लगता है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में। ओके, जैसे कि यहाँ पे सारा की बात की गई है, तो सारा एक ही तो लड़की है, सारा एक ही तो लड़की है, तो उसकी वर्ब में एस एस लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगी। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है हमारा क्रिया। वर्ब क्या होता है? हमारा क्रिया। जो भी काम हो रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो व्यक्ति काम कर रहा है, वो ही हमारा वर्ब हो गया। ओके, वर्ब मीन्स क्रिया। कोई भी काम करने को हम क्रिया कहते हैं। राइट, कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसे हम क्रिया कहेंगे, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे सारा क्या कर रही है? एक्टिविटी गो की है ना, सारा की एक्टिविटी क्या है? वो जा रही है। ओके, गो गो गो। अब सारा क्योंकि सिंगुलर है, जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें एस एस लग जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात? ऐसे समझते हैं, देखो सपोज एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम, एक दो टेंस करके देखते हैं इसके। जैसे कि अगर मैं कहूँ हम दूध पीते हैं, यहाँ पे थोड़ी हिंदी भी आपको लिखनी होगी। राइट, हम दूध, एंड सॉरी फॉर माई हिंदी राइटिंग गाइज। ओके, पीते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हूँ। ठीक है, हम दूध पीते, तो इसे कैसे बनाएंगे? हम दूध पीते हैं। अब सबसे पहले देखो कि हम क्या होता है? वी, है ना, वी मतलब ये एक बहुवचन है, मीन्स एक प्लूरल फॉर्म है, इजंट इट? तो इसमें एस एस हम नहीं लगाएंगे। हम सिंगुलर के साथ एस एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ एस एस नहीं लगता है। तो वी विल, शैल, हैव, आर, इज, कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल टेंस है तो सिंपल ही बना देंगे इसे। ठीक है, वी ड्रिंक द मिल्क,
दैट्स इट, आपका टेंस बन के तैयार हो चुका है। हम दूध पीते हैं, वी ड्रिंक द मिल्क। ऐसी एस क्यों नहीं लगाई? क्योंकि प्लूरल के साथ नहीं लगाते प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सपोज दिया होता वह खेलता है, ओके वह खेलता है, तो कैसे बनाते? सिंपल, ही प्लेज। क्या करते? ही प्लेज। एस क्यों लगाया? क्योंकि ये एक सिंगुलर है। समझ आ रही बात? ये एक सिंगुलर है। तो इन वाक्यों में क्या होता है, इन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देते हैं सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाते। प्लूरल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंगुलर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पर जस्ट डिफरेंस इतना है कि सिंगुलर में एस एस लग जाती है, प्लूरल में एस एस नहीं लगती है। मेक श्योर नहीं लगती है, ठीक है, नहीं लगती है। ओके, ये हो गया हमारे फर्स्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सिंगुलर होता है, ओके, और प्लूरल भी यहाँ पे लिख देते हैं, प्लूरल। ओके, देखो जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डज नॉट। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज नॉट और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ। और प्लूरल के साथ, जैसे कि प्लूरल हमारा हो गया आई वी यू दे, ये हमारे प्लूरल होते हैं। ही शी इट नेम, ये हमारे होते हैं सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल होते हैं हमारे आई वी यू दे, ओके। उनके साथ हम लगाते हैं डू नॉट, मेक श्योर, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है उनके साथ भी। दैट्स इट, ये हमारे हो गए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। ये किसके लिए था? हमारे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटैरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? इंटैरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? ओके, इंटैरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? इंटैरोगेटिव सेंटेंस के लिए वही होगा सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में। दैट्स इट, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं, बस यही करना है आपको। ओके, एक एक सेंटेंस दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर नेगेटिव की बात करें तो हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो हम क्या होता है, हम होता है हमारा प्लूरल, वी डू नॉट, ओके, वी डू नॉट रीड। एस एस कुछ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एस एस नहीं लगेगा। वी डू नॉट रीड द बुक, वी डू नॉट रीड द बुक, वेरी इजी है ना। एस केस हमने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये प्लूरल सेंटेंस है, ओके। प्लूरल किससे पता चल रहा है? इस चीज़ से पता चल रहा है ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसमें वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस में पहले हम क्या करते हैं, इंटैरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें पहले डू या डज लगा देते हैं, ठीक है, जिससे, और क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, इम्पॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन मार्क लगाना इंटैरोगेटिव में इज इम्पॉर्टेंट, हर इंटैरोगेटिव। जैसे कि बहुत सिंपल से सेंटेंस देख लेते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तो इसे कैसे बनाएंगे? तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, राइट, वेयर डू यू लिव। अब डू यू मतलब ये दोनों क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डू लगा। यू क्या है, प्लूरल है, इसलिए तो इसके साथ डू लगा, ओके। तो इसी तरीके से बनाना है। अब जैसे कि एक होता क्या, कुत्ता दूध पीता है, तो कुत्ता क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगता है, डज, ओके। सो डज द डॉग ड्रिंक द मिल्क, डज द डॉग ड्रिंक द मिल्क। इस तरीके से इंटैरोगेटिव इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसके साथ पहला टेंस खत्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
तो इसी के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल भी ख़त्म कर दिया है। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सीधे एस के एस जोड़ देते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में हम मतलब जो एक वचन होता है मीन सिंगुलर होता है उसके साथ डज लगाते हैं, प्लूरल होता है उसके साथ डू लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे, सिंपल, कुछ एस आई एन जी नहीं लगाते। ओके, और जो हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें मतलब सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ऐसी ये कुछ नहीं जोड़ते उसमें भी। तो ये इसके साथ अपने प्रेजेंट सिंपल भी ख़त्म कर दिया है। ओके, जो हमारा प्रेजेंट सिंपल था मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट था, फर्स्ट टेंस हमारा खत्म हो गया। लेट्स कम्स टू द पास्ट सिंपल, पास्ट टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया, सॉरी, जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं या प्रेजेंट टेंस होता है उसकी हम पहचान कैसे करें, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। ओके, उसकी पहचान कैसे करें सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जिस भी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के बाद लास्ट में ऐसे शब्द हैं, ता है, ती है, ते है, ओके, ता है, ती है, ते है और एसेट्रा, इस तरीके से शब्द हैं, समझ जाना वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या दिया होता है, ता है, ती है, ते है, इस तरीके के शब्द दिए होते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। वह खेलता है, खेलता है, अब यहाँ पे देखो, ता है, राइट, ये ता है आया यहाँ पे, तुम खेलती हो, ती है आया, तुम खेलती हो। ओके, बे खेलते हैं, खेलते, ते हैं, तो इस चीज़ से पहचान होती है, इन दो चीज़ों से पहचान होती है कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ओके, है से समझ आ रहा है प्रेजेंट है। ठीक है से तो समझ आ रहा है, इस है से समझ आ रहा है प्रेजेंट है, और इस ता से समझ आ रहा है कि ये इंडेफिनिट है। समझ आ रही है, ता है, ती है, ते है, ये हमारी पहचान होती है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब हम आते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस पे, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट। ठीक है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ओके, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेकंड होगी। ठीक है, ये गलत दिया है यहाँ पे, जस्ट वेट मिनट, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा पास्ट का। ठीक है, किसका होता है ये, पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह, जैसे कि बिल्ली दौड़ी, सिंपल से देखते हैं, बिल्ली दौड़ी, तो द कैट रैन। ठीक है, द कैट रैन सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। समझ आ रही बात, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। और इसमें जैसे कि सारा ट्रेन से पार्क गई थी, या सारा ट्रेन से पार्क गई, तो क्या होगा, सारा वेंट टू पार्क बाई ट्रेन। वेंट मीन्स गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, तो इससे हमारा समझ आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके लास्ट में क्या आता है, जल्दी से देख लेते हैं। इसके लास्ट में आता है हमारा था, थी, थे, एसेट्रा, इस तरीके के शब्द आते हैं, आ, ई, ए, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे सारा पार्क, सारा कल, जैसे कि सारा कल बदायूं गई थी,
ओके, या उसने फूल तोड़ा था, तोड़ा था आ रहा है, तोड़ा यहाँ पे, तोड़ा देखो यहाँ पे, तोड़ा के लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ा का डंडा आ रहा है, राइट। तो ये टेंस क्या होते हैं, टेंस की पहचान होती है ये, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं हम जल्दी से पास्ट इंडेफिनिट को। इनके लास्ट में क्या आता है, जल्दी से, इनके लास्ट में क्या आता है, था, है नहीं आएगा, है आ गया तो प्रेजेंट हो गया, इजंट इट, तो सीधे था आएगा, था, थी, थे, था, थी, थे। और भी शब्द आते हैं, और भी शब्द आते हैं, स्वीट, था, थी, थे, आ, ई, बड़ी, और ए, एसेट्रा, और भी शब्द आते हैं, ठीक है। अगर लास्ट में ये शब्द आ रहे हैं ना, अगर ये शब्द आ रहे हैं लास्ट में, समझ जाओ ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। लास्ट में यही आने चाहिए, क्या, था, थी, थे, आ, ई, ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने मैच देखा था, मैंने मैच देखा था, सो आई सॉ अ मैच, ओके, आई सॉ अ मैच। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ये कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि एक और देख लेते हैं, तुमने राम को देखा था, तो यू सॉ राम। इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस लगा देते हैं। अब हम देखते हैं इंटैरोगेटिव और नेगेटिव की बात, ठीक है। ये तो हमारी होगी पास्ट। अब हम देखते हैं इंटैरोगेटिव पास्ट मीन्स जो हमारे इंटैरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं सबसे पहले, ओके। नेगेटिव में देखो क्या होता है, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, जो सिंगुलर होता है, ओके, क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसमें क्या, इसमें ही था, थी, थे आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट है तो था, थी, थे तो कॉमन है। पर इसमें सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, नेगेटिव में जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, क्या लगाएंगे, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, B1, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम प्लूरल की बात करें, प्लूरल की बात करें तो इसमें क्या लगेगा, इसमें भी हमारा डेड नॉट ही लगता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें भी हमारा डेड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें नेवर का यूज़ होता है, ओके, जिसमें नेवर का यूज़ होता है। जैसे मैंने कभी मैच नहीं देखा, ओके, मैंने कभी मैच नहीं देखा, तो ऐसे जगह पे आपको क्या करना है, ठीक है, जिसमें नेवर यूज़ हो, जिसमें नेवर यूज़ हो, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, ऐसी जगह पे आपको वर्ब के साथ, ओके, सॉरी, इसके क्या, वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है, ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। अभी तक हम क्या लगा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, पर नेवर जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, डिड नॉट ही लगता है, ओके। जैसे अगर हम देखें तो मैंने मैच कभी नहीं देखा, तो आई नेवर सॉ अ मैच, आई नेवर सॉ अ मैच, अ मैच, इजंट इट, नेवर लगा यहाँ पे, सॉ लगा, सेकंड फॉर्म लगी, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगी, तो इस तरीके से हम इसे बनाते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो आपको, ओके। तो ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये हमारा कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट पे आ जाते हैं, वेरी सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बहुत इजी है, ठीक है, ओके। आई थिंक मैंने इसका, एक मिनट, पास्ट का आई थिंक मैंने वो नहीं बताया है, पास्ट का इंटैरोगेटिव भी देख लो, पास्ट का इंटैरोगेटिव,
पास्ट का इंटेरोगेटिव जल्दी से देखते हैं। पास्ट के इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होता है, आपको चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, ठीक है। आपको सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और सबसे मतलब जो सेंटेंस होता है उसके शुरू में आपको डेड का यूज़ करना है, डेड प्लस V1 का यूज़ करना होता है, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, ओके। जैसे कि क्या कौवा उड़ गया था, लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है, तो कैसे बनाएंगे, डिड द क्रो क्या होगा, फ्लाई, फ्लू नहीं होगा, फ्लॉन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फ्लाई होगा, सीधे फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारे हो जाते हैं 2 सेंटेंसेस कंप्लीट, 1 and 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट पे। जस्ट वेट, फ्यूचर इंडेफिनिट पे, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट पे ही आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ नहीं, सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल लगेगा। विल शैल कहाँ लगेगा मैं बता रहा हूँ, विल शैल लगेगा, ओके। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। देखो क्या होगा, आई और विल के साथ, जहाँ भी आई और विल, सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग, सॉरी, आई और वी के साथ, विल नहीं वी, आई और वी के साथ आपका क्या लगेगा, हमेशा 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 याद रखना, कभी मत भूलना, शैल लगेगा हमेशा, ओके। और बाकी सब के साथ जैसे आई, जैसे कि वी, सॉरी, जैसे कि यू, दे, ओके, ही, शी, इट, नेम, सब के साथ, बाकी एसेट्रा के साथ आपका क्या लगेगा, विल। समझ आई ये बात, कभी मत भूलना, विल, ओके, WILL, विल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, ओके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वी के साथ शैल लगता है, जहाँ भी आई और वी देख लो, मैं और हम देख लो, मैं और हम देख लो, तो वहीं पर शैल लगा देना, ओके। जहाँ पे और सब देख लो, जैसे ही, शी, इट, ओके, और भी सब जो होते हैं, नेम किसी का या कुछ भी, तो वहाँ विल लगा देना, ओके। एग्जाम्पल जल्दी से देखते हैं, जैसे कि इसमें दिखाए, ओके, सारा विल गो टू पार्क बाई ट्रेन। सारा कौन है, सबसे पहले ये बताओ, एक नेम है, सारा क्या है, एक नेम है, तो वहाँ क्या लगेगा, विल, ओके। गो फर्स्ट फॉर्म लगी वर्ब की, और बस उसी तरीके से आपको सेंटेंस बना देना है, सारा ट्रेन से पार्क जाएगी, ओके, जाएगी। लास्ट में इनके क्या होता है, जो स्पीड, इनके लास्ट में होता है हमारे गागी, गे, एसेट्रा, इस तरीके के लास्ट में शब्द होते हैं, ठीक है। हमारी किस में, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात। इनके लास्ट में कैसे शब्द होते हैं, गा, गे, गी तरीके के शब्द होते हैं, और इनमें काम अभी होने को है, हुआ नहीं है, अभी वर्क हुआ नहीं है, होने को है, मीन्स वर्क जो है वो फ्यूचर में होगा, इसलिए तो इनका नाम फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, आई वी के साथ शैल लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और बाकी सबके साथ विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दैट्स इट, ओके। ये तो हो गया हमारे टेंस, ओके। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस को, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि राम पत्र लिखेगा, गा मीन्स अभी लिखा नहीं है, लिखेगा, इससे पहचान करना सीखो, गा, गे, गी से, समझ आ रही बात। तो क्या होगा, राम क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, शैल। राम एक क्या है, नेम है, सिंगुलर नहीं, राम एक नेम है, तो क्या लगाएंगे, शैल नहीं, विल। राम विल राइट आ लेटर, ठीक है। राम एक नेम है, इसलिए क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ओके। जैसे कि हम जस्ट हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी
घूमने जाएंगे, सपोज ये है, हम घूमने जाएंगे, ठीक है, हम घूमने जाएंगे तो इसे क्या लगाएंगे, वी विल गो फॉर अ वॉक। नहीं, वी शैल। क्यों? क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो वी शैल गो फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, दैट्स इट। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। सिंगुलर के साथ मीन्स आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। नेगेटिव में कैसा होता है, जल्दी देखो, नेगेटिव में कैसा होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसा होता है, आई वी के साथ, आई स्लैश वी के साथ क्या लगाते हैं, और एसेट्रा बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं, जल्दी देखते हैं। आई वी के साथ तो हम लगाते हैं वे, सॉरी व्हाट आई, जस्ट वेट, शैल नॉट। ध्यान रखना, जो गलती मैं कर रहा हूँ वो नहीं करनी होनी चाहिए। आई वी के साथ शैल ही लगता है, ओके, बाकी सबके साथ विल नॉट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वी वन एट वी वन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। नेगेटिव में इंटेरोगेटिव लिखते जल्दी से, इंटेरोगेटिव, ओके, इंट्रो नहीं है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल आई वी के साथ वो ही रहता है, आई वी के साथ हमारा क्या लगता है, शैल से शुरुआत होती है, बाकी सबके साथ एसेट्रा के साथ हमारा विल लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। और ये जो आई वी की होती है, पहले शब्द होते हैं, मतलब पहले आता है, इनका यूज़ पहले होता है, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं को यूज़ करके आप सेंटेंस अपना स्टार्ट करते हैं, ओके, क्या करते हैं, सेंटेंस अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है ना, तो सबसे पहले तो उसी का यूज़, जैसे कि हम देख लेते हैं, क्या तुम पत्र लिखोगे, किससे पहचान हुई, इंटेरोगेटिव में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सब भूल जाते हैं, ये चिन्ह लगाना, इंटेरोगेटिव मार्क लगाना, ओके, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना, ये अगर भूल गए तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या तुम पत्र लिखोगे, क्या होगा, विल यू, ओके, और शैल यू क्या होगा, विल यू होगा, ठीक है, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है और किसी के साथ शैल नहीं लगता है। विल यू राइट आ लेटर, समझ आ रही बात। ये इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इजी पीजी से होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इनमें, ओके। आई वी के साथ हमेशा शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती ही लगती है, ठीक है। लेट्स सी, ओके, इंटेरोगेटिव आई होप समझ आ गया हो। ओके, सो इसके साथ साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्रेजेंट के हमने तीनों, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूस पे। देखो, हम एक हायरार्की लेके चल रहे हैं, ठीक है। कैसे चल रहे हैं, एक हायरार्की लेके चल रहे हैं। किस तरीके की हायरार्की, सबसे पहले क्या होता है, indefinite, then continuous, then perfect, then perfect continuous, ठीक है। हमने प्रेजेंट के तीनों कंप्लीट कर लिए, इंडेफिनिट भी कर लिया है, प्रेजेंट के हमने तीनों कर लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों हमने सिंपल इंडेफिनिट कर लिए, ओके। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों कर लिए। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूस पे। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है, कोई काम अभी है, चल रहा है, ठीक है, कोई काम भी चल रहा है, तो इसमें कैसी पहचान होगी, सबसे पहले की पहचान देखो, ओके, रहा है,
रहे हैं, रही है, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। ओके, रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कोई चीज़ अभी प्रेजेंट में चल रही है। ओके, तो इन्हें बनाने की क्या होता है, देखो, सब्जेक्ट इज एम आर पर प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाती है, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही होता है। देखो क्या होता है इनमें, जो सिंगुलर होता है उसमें क्या लगेगा, ऑब्वियसली सिंगुलर में इज लगेगा, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं जोड़ोगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा ही नहीं, बेकार। ओके, प्लूरल में क्या होता है, ऑब्वियसली आर लगेगा, ओके, और बी वर्ड लगेगा प्लस आई एन जी तो लगेगा ही, ठीक है। जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैं खेल रहा हूँ, अभी वो काम हुआ तो नहीं है, हो रहा है, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यही बताता है कि कोई काम हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो आई एम प्लेइंग, ओके, आई के साथ एम हमेशा लगता है, और सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। सिर्फ एक आई ऐसा होता है जिसके साथ एम लगता है। नाउ आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता होंगे, ठीक है। तो मैं खेल रहा हूँ, वह गा रही है, शी इज सिंगिंग, क्योंकि वो काम हो रहा है, अभी जो काम हो रहा है उसमें आई एन जी जोड़ेंगे, ठीक है। चाहे एक वचन हो, चाहे दो वचन हो, बहुवचन हो, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़नी ही जोड़नी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। समझ आई बात, ये होती है हमारा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इंटेरोगेटिव लिख देते हैं, ओके, इंटेरोगेटिव लिख लेते हैं हम। इंटेरोगेटिव में कैसे होगा, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं, यही रहता है कि विल और शैल सबसे पहले लग जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। क्या लगती है, इज, आर, एम के साथ। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सॉरी, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, विल शैल लग जाती है पहले, आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, ओके, ये तो पता ही होगा, प्लस ये पहले लग जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, दैट्स इट, ओके, इतना ही होता है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव देख लेते हैं, ओके, नेगेटिव में आपका वो ही होता है, इज एम आर, ओके, इज एम आर प्लस क्या लगेगा, नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉट, ओके, इज एम आर नॉट लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देती है, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों के, जैसे कि नेगेटिव में तुम लिख नहीं रही हो, इस तरीके से अगर हम बोलें तो क्या होगा इसका, यू आर, क्योंकि क्या है, यू क्या है, प्लूरल है, ओके, तो इसके साथ वर्ब वो भी कैसे लगेगी, प्लूरल, यू आर नॉट राइटिंग, आई एन जी जोड़ना बिल्कुल मत भूल जाना, ये एक ही टी है, ठीक है, यू आर नॉट राइटिंग, ओके। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं, क्या हम पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ेंगे, सो शैल वी स्टडी, एंड क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, इफ यू डिड फॉरगॉट क्वेश्चन मार्क यू विल फॉरगॉट द नंबर एज वेल, ओके। तो ये हमारे इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो गया, ओके।
एक मिनट, क्या हम पढ़े कि नहीं, सॉरी क्या हम पढ़े कि नहीं, ये गलत हो गया, ये तो हमारा फ्यूचर में हो गया ना। एक और कुछ देख लेते, क्या हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये होगा नहीं रहे हैं, तो इसका क्या होगा, आर वी नॉट रीडिंग। आर क्यों लगा, रीडिंग का ये, ठीक है। आर क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल है, बी क्या है, प्लूरल है, ठीक है, बी इज प्लूरल, इसके इसलिए इसके साथ आर लगा, ठीक है। आर वी डॉट नेगेटिव में सेंटेंस बन गया, रीडिंग क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। आपके क्या हो गया, ये वाला सेंटेंस भी हो गया कंप्लीट, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेट्स सी द पास्ट कॉन्टिन्यूस। आप पास्ट कॉन्टिन्यूस देख लेते जल्दी से। पास्ट कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं, ओके। इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वी भी लगेगा, शैल बी, वो ही होता है आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, ओके। और वर्ब में, ओके, वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा, ओके। जैसे पास्ट, क्या वह पार्क जाएगी, क्या वह पार्क जा रही थी, ओके, या सारा पार्क जा रही थी, अगर हम बोले तो क्या होगा, सारा वॉज गोइंग टू पार्क बाई ट्रेन, ओके, सारा ट्रेन द्वारा पार्क जा रही थी, ओके। रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे, रहा था, यही इसकी पहचान होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। रहे थे, एक मिनट, रहे थे, रहा था, रही थी, ओके। ये हमारी पहचान होती है किसकी, पास्ट वेयर वर्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है प्लस विल बी, नहीं, सब्जेक्ट लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज, एक वचन के साथ वॉज, बहुवचन के साथ वर, ओके, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस तो आई एन जी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, V1 में आई एन जी लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या सारा ट्रेन द्वारा पार्क गई थी, सारा ट्रेन द्वारा पार्क जा रही थी, तो क्या होगा, सारा वॉज गोइंग टू पार्क बाई ट्रेन, किससे जा रही थी, ट्रेन द्वारा। देख लेते हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था, सिंगुलर में, ध्यान से सुनो, सिंगुलर में, ओके, और आई के बाद, सिंगुलर में और आई के बाद, आई में भी होता है, ठीक है। आई वैसे ही प्लूरल माना जाता है, पर इसमें आई के साथ भी वॉज लगता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ओके, वॉज लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और आई एन जी तो लगेगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। प्लूरल में क्या होगा, वर्ब लगेगा, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई एन जी ही लगेगी, समझ आ रही, ये होता है हमारा बनाने का फॉर्म। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, जैसे कि मैं तैर रहा था, ओके। तो क्या होगा इससे, आई वॉज, क्या होगा, वॉज स्विमिंग। अब आई तो प्लूरल है, पर इसमें वॉज क्यों लगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आई के साथ वॉज लगेगा, सिंगुलर और आई के साथ वॉज लगेगा, बाकी सबके साथ वर लगेगा, वर की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई एन जी लगेगी, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इसलिए मैंने ये वाला सेंटेंस लिया था, मैं तैर रहा था, आई वॉज स्विमिंग, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, दो आई इज प्लूरल, पर फिर भी आई के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पास्ट कॉन्टिन्यूस। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं जल्दी से पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ओके। नेगेटिव देखते हैं सबसे पहले, नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि
जैसे कोई सेंटेंस ले लो, तुम खाना नहीं खा रहे थे, तुम खाना नहीं है, ओके, नो नहीं है, ये खा रहे थे, रहा था रहे थे, ये इसकी पहचान होती है, पता है, रहा था रहे थे रही थी, ये इसकी पहचान होती है। तो क्या होगा, यू, क्या है यू, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर, यू वर नॉट ईटिंग फूड, समझ आई बात, यू वर नॉट ईटिंग फूड, यू वर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे थे। एक इंटेरोगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी से। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस जैसे कि क्या तुम सो रहे थे, तो क्या होगा, इसका क्या बनेगा, वर, ओके, क्योंकि ये प्लूरल है, वर यू स्लीपिंग, वर यू स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन मार्क इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, समझ आ रहा है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इस तरीके से बनेगा। एक और इंटेरोगेटिव देख लेते हैं जल्दी से। क्या पानी बह रहा था, रहा था रहे थे रही थी, यही पहचान होती, पता है, तो इसका क्या बनेगा, वॉज द वाटर फ्लोइंग, ओके, वॉज द वाटर फ्लोइंग एंड क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूस की जल्दी से आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे, ओके, जल्दी से आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे। कहाँ आ गए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे। अब फ्यूचर और कॉन्टिन्यूस के लास्ट में क्या होता है, रहा होगा, क्योंकि क्या है, फ्यूचर में है और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, रहे होगे, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, रही होगी, ओके। इसे बनाने क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर होता है, ओके। दो फ्यूचर है, नॉट दिस, एक मिनट, फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगेगा प्लस आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल भी लगेगा, आई वी के साथ शैल भी लगेगा, ओके, और आई एन जी लगेगा, आई एन जी और वर्ब की ऑब्जेक्ट लगेगा, ओके। यहाँ दोबारा देख लेते हैं, जिसमें पहले अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पहचान तो हमने देख ही ली, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके की पहचान होती है, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके की पहचान होती है, इजंट लास्ट में। और इसके मतलब कैसे बनाते हैं हम, इसे बनाते हैं हम, जल्दी से देखते हैं हम, आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल बी, आई बी के साथ लगेगा शैल बी, और वर्ब में आई एन जी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, वर्ब में आई एन जी भी ऐड हो जाएगी, बाकी और सबके साथ, और एसेक्ट्रास के साथ, एसेक्ट्रा मीन्स बाकी सब जो ही शी इट मी, मतलब जो भी हो गई, यू विल, यू वी, ये सब, इसके साथ क्या लगेगा, विल बी, ओके, एंड वर्ब में आई एन जी ऐड हो जाएगी, समझ आई। ये होते हैं इसके बनाने के वो। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, एग्जाम्पल जैसे कि मैं स्कूल जा रहा, आई एम अगेन सिंग सॉरी फॉर माई हिंदी राइटिंग, ओके, यहाँ पे मेरी हिंदी राइटिंग बहुत बुरी हो रही है, ओके। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, सिंपल सा कैसे बनाएंगे, जल्दी बताओ, क्या पढ़ा था हमने, क्या होगा, आई बी के साथ क्या होगा, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाएगी, बाकी सबके साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाएगी। तो कैसे बनाएंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई
शैल भी आई के साथ शैल लगता है हमेशा, याद रख, कभी मत भूलना। शैल भी गोइंग आईएनजी लग जाएगी वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी, गोइंग टू स्कूल। ओके, इस तरीके से बनेंगे सेंटेंस। ओके, सूरज निकल रहा होगा सपोज। ओके, तो द सन विल बी राइजिंग। ओके, द सन विल बी राइजिंग, इस तरीके से हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सबसे पहले देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसमें शैल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। ओके, सबसे पहले शैल लगेगा। ओके, ऐसे ही आई वी के साथ, ठीक है, आई वी के साथ, और ऐसे ही बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी। समझ आ रही बात। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं, एक दो सेंटेंस। क्या मेहमान आ रहे होंगे, क्या मेहमान आ रहे होंगे, तो कैसे बनाएंगे हम, विल द गेस्ट, क्योंकि बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल कुछ भी हो, बी भी लगेगा, वी कमिंग, विल द गेस्ट बी कमिंग। ओके, एक और देख लेते हैं इसका। क्या तुम लिख रहे होगे, इंटेरोगेटिव, तो इसे कैसे बनाएंगे, विल यू बी राइटिंग, विल यू बी राइटिंग, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। ओके, ये तो हो गया मैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि हमारे हो गए, मैं लिख नहीं रही होंगी, मैं लिख नहीं रही होंगी। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, आई शैल नॉट बी, नॉट के बाद भी आएगा, नॉट बी राइटिंग। ओके, कैसे होता है, आई शैल नॉट बी राइटिंग। ओके, देखो क्या होता है इसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका होता है आई वी के साथ, आई स्लैश बी के साथ, आई बी के साथ हमारा हमेशा 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 क्या लगता है, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, शैल तो लगता ही लगता है, नॉट भी और जुड़ जाता है, शैल नॉट भी। ओके, और वर्ब की हमारी कौन सी, वर्ब में हमारी आईएनजी ऐड हो जाती है। बाकी सब की बात करें तो हमारा क्या होगा, बाकी सब में ऑब्वियसली विल नॉट बी, और डिट्टो सेम रहता है जो कि होता है वर्ब। ओके, वर्ब प्लस आईएनजी जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा नेगेटिव रहता है। इंटेरोगेटिव मैंने बता ही दिया। ओके, इंटेरोगेटिव मैंने बता ही दिया, नेगेटिव भी बता दिया। ओके, तो इसके साथ हमने क्या कर लिया है, हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो हमारे फ्यूचर प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ओके, एंड लाइक इंडेफिनिट हो गया और कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम आते हैं परफेक्ट पे, थर्ड पे, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आ जाते हैं जल्दी से। ओके ओके, अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ओके, इस वाली टेंस पे आ गए हम, प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब इन जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, इन टेंसेस के लास्ट में ये जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, हिंदी में चुका है, क्योंकि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट है ना, चुका है, चुके हैं। ओके, एंड चुकी है, ये तो आता ही आता है। ओके, चुका है, चुके हैं, चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है लास्ट में ये भी आता है, लिया है और दिया है। ओके, लिया है
और दिया है। ओके, लास्ट में इन तरीके के शब्द आते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मोहन स्कूल जा चुका है, ठीक है, मोहन स्कूल जा चुका है, लास्ट में चुका है आया है। वह घंटी बजा चुकी है, ठीक है, वह कल शादी में आ चुकी है। इस तरीके के शब्द आते ही आते हैं, ठीक है, लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, अब देखो इनमें होता क्या है, इनमें होता है सब्जेक्ट, ओके, प्लस हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। समझ आ रही बात? वर्ब की हमेशा हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म ही लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो कौन सी फॉर्म लगेगी गो के लिए? गॉन, ठीक है। इस तरीके की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं इसके बनाने के नियम। ओके, अब हम देखते हैं एक सेंटेंस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। सारा हैज़ गॉन टू पार्क बाई ट्रेन, सारा ट्रेन द्वारा पार्क जा चुकी है। ओके, इस तरीके से बनता है। सारा सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। ओके, तो क्या हुई थर्ड फॉर्म? गॉन, तो क्या लगेगी? गॉन। ओके, इसी तरीके से हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ये तो बहुत इजी है। हैज़ एक बचत के साथ हैज़ लगता है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दैट्स इट, ये बहुत ही इजी होता है। ओके, अब देखते हैं जल्दी से। दोबारा बता रहा हूँ मैं, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आई बात? सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि लड़के स्कूल जा चुके हैं। अब एक बात बताओ, लड़के एक हैं या बहुत है? बहुत है ना, तो कैसे बनाएंगे? क्या लगाएंगे? हैज़, हैव। सो द बॉयज, हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे? जल्दी बताओ। हैव लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। हैव, गो, वेंट, गॉन, कौन सी लगेगी? गॉन, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सो द बॉयज हैव गॉन टू स्कूल, टू द स्कूल, इस तरीके से। ओके, वह अपना काम कर चुकी है। ओके, वह अपना काम कर चुकी है। तो कैसे बनाएंगे? शी हैज़ डन हर वर्क, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैज़, हैव के साथ। समझ आई बात? यही होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब हम देखते हैं जल्दी से नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि इन्हें हम कैसे बनाएंगे। इन्हें कुछ नहीं, बस हैज़, हैव के साथ नॉट का यूज़ कर देना है, बस। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें क्या होगा? हैज़ और हैव के साथ सीधे सीधे नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है, बस। सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या हो सकता है? गाड़ी नहीं आई है, ये भी एक हो सकता है। ओके, नहीं आई है, तो कैसे बनेगा? द कार हैज़, क्योंकि कार क्या है? सिंगुलर है। नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। केम, कम, कम, केम, कम। ओके, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, ठीक है। ओके, जो थर्ड फॉर्म होती है कम की, वो कम ही लिखी जाती है। ओके, कम, केम, कम, इस तरीके से। तो द कार हैज़ नॉट कम, इसी तरीके से आपको नेगेटिव बनानी है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं, वो ही पहले आ जाता है। जैसे कि क्या गाड़ी जा चुकी है?
अगर हम इसी को लें ओके, तो हम क्या बनाएंगे, हैज़, क्योंकि हैज़ पहले लगता है इंटेरोगेटिव में, ये क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, हैज़ द कार क्या जा चुकी है, मीन्स थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या होती है थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। ओके, और क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरीके से आपको इंटेरोगेटिव बनानी है। ओके, आई होप समझ आ गए हूँ आपको ये। ओके, तो ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। लेट्स सी द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं होता है, एक वचन हो, दो वचन हो, हैड ही लगेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ओके, बहुत ईजी होता है। देखो जितना आगे बढ़ते जाओगे उतने ईजी टेंसेस आते रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैड भी लगता है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ हैड लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, इजंट इट। जैसे कि सारा विल हैव गॉन टू पार्क बाय ट्रेन। ओके, नहीं पास्ट, हम पास्ट देख रहे हैं, सॉरी, पास्ट परफेक्ट देख रहे हैं ना। तो सारा हैड गॉन टू पार्क बाय ट्रेन। सारा किससे पार्क, सारा ट्रेन द्वारा पार्क जा चुकी थी। ओके, पास्ट परफेक्ट में इस तरीके से क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि हम सेंटेंस देखें तो क्या, मैं किताब पढ़ चुका था, चुका था, चुके थी, चुकी थी, लिया था, दिया था, यही पहचान होती है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, आई क्या है तो प्लूरल, पर हम इसमें सिंगुलर की वो लगाते हैं। ओके, आई हैड रेड। ओके, रेड ही थर्ड फॉर्म होती है। ओके, इसे रेड पढ़ते हैं, होती है रीड, या लिखते रीड ही करेंगे, पर रेड पढ़ते हैं थर्ड फॉर्म को। ओके, तो रेड द बुक, इस तरीके से बनाएंगे। ओके, और देख लेते हैं हम नेगेटिव में, देख लेते हैं नेगेटिव में कैसे बन सकता है। जैसे कि नेगेटिव का सेंटेंस हुआ, हम अपना काम नहीं कर चुके थे। ओके, हम अपना काम नहीं कर चुके थे, हम अपना काम नहीं कर चुके। तो कैसे बनाएंगे, इसे कैसे बनाएंगे, बी क्या है, प्लूरल, आई बी प्लूरल है। ओके, नहीं सॉरी, इसमें हैड ही लगता है। ओके सॉरी, आई फॉरगॉट, पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो इसमें सिंगुलर हो प्लूरल हो हैड ही लगेगा। ठीक है, हैड ही लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट्स इट। ओके, वी हैड, भूल मत जाना, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हैड ही लगेगा। सो वी हैड, हम अपना काम नहीं कर चुके, वी हैड नॉट डन आर वर्क, इस तरीके से होगा। ओके, ये तो गया। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव में सेंटेंस जैसे कि क्या से शुरू होगा, जैसे कि क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, ऐसे लिखते हैं। ओके, क्या पुलिस, सेंटेंसेस ध्यान नहीं आते हैं कई, चोर को पकड़ चुकी थी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, चुके थे, चुकी थी, इसी चीज़ जो लास्ट की चीज़ उसकी पहचान की जाती है। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप, मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसे आप किससे शुरू करेंगे, हैड से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हैड द पुलिस, क्योंकि एक पास्ट परफेक्ट टेंस है इंटेरोगेटिव का, तो हैड से शुरू करना है। ओके, हैड द पुलिस कैच कॉट काउट। ओके, काउट द थीव। ओके, और क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। समझ आ रही है बात, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के। आई होप पास्ट परफेक्ट भी समझ आ गया हो। इसी के साथ हमारे पास्ट के कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं फ्यूचर के टेंसेस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस,
ओके, फ्यूचर परफेक्ट पे आ जाते हैं हम। ओके, फिर हम पढ़ेंगे परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है, इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट, ओके, और विल हैव लगता है इसमें। ओके, फ्यूचर परफेक्ट में जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, एक मिनट, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव भी तो लगेगा। जस्ट मैं बताता हूँ, एक मिनट, इससे थोड़ा सा कैंसिल कर दूँ। ओके, मैं बताता हूँ अच्छे से, एक मिनट। फ्यूचर परफेक्ट है ना ये, तो इसमें क्या लगेगा, आई स्लैश बी के साथ हमारा क्या लगता है, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं बाकी सबके साथ, ओके, बाकी सारे सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, आई बी के साथ शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सबके साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, बस यही होता है, आपको यही लगाना होता है। ओके, ओके, जैसे कि सेंटेंस देख लो, सारा विल हैव गॉन टू पार्क बाई ट्रेन। ठीक है, लगा है यहाँ पे लगा है सी, सारा विल हैव, सारा सिंगुलर इसलिए विल हैव लगा है, विल हैव गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, टू पार्क बाई ट्रेन, इसी तरीके से लगाना है। ओके, क्या लगाना है, आई के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ एसेट्रास के साथ विल हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी है दोनों में। ओके, इस तरीके से बनता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ आ रही है? सेंटेंस देख लेते हैं हम। ओके, जैसे कि तुम नहा चुके होगे, इसकी पहचान देख लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, क्या होती है पहचान, पहचान क्या होती है इसकी, इसके चुके हैं, चुके होगे, होगे, चुकी होगे, इस तरीके के सेंटेंस लास्ट में आते हैं। चुके होगे, चुकी होगे, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। ओके, लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे। ओके, तो तुम नहा चुके होगे, तो क्या होगा, इसमें क्या लगेगा, क्या लगता है इसमें, यू, क्या है, यू है ना, तो इसमें विल लगेगा, यू विल हैव, यू विल हैव बात की थर्ड फॉर्म बाथेड होती है। ओके, यू विल हैव बाथेड। ओके, तुम नहा चुके होगे, तुम, यू विल हैव बाथेड। इसी तरीके से अगर हम करें कि मैं सो चुका हूँगा, आई एम सॉरी, मैं नहा चुका होगा। ओके, मैं नहा चुका होगा, तो आई शैल हैव बाथेड, इस तरीके से कि मैं नहा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, आई शैल हैव स्लेप्ट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब एक मतलब सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें फ्यूचर परफेक्ट में। समझ आ रही है? अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, जल्दी से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो नेगेटिव में वही होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में ओके, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ आपका लगेगा, सिंगुलर नहीं सॉरी, आई वी के साथ। ओके, सिंगुलर नहीं, आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव
नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। बाकी सबके साथ विल हैव नॉट, बाकी सबके साथ विल हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ओके, जैसे कि सेंटेंस देख लो, नेगेटिव के सेंटेंसेस हो गए, मोर नाच नहीं, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये इसकी पहचान होती है। ओके, तो कैसे बनाएंगे? द पिकॉक विल नॉट, ठीक है, विल नॉट वी डांस्ड, इस तरीके से बनाते हैं। ओके, नेगेटिव के सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव देख लेते हैं। इंटैरोगेटिव में क्या होता है? इंटैरोगेटिव में गाइस होता है हमारा वही सेम रहता है हमारा, विल या शैल के साथ हम हैव लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाकी सबके साथ आई और विल वी के साथ शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सबके साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आ रही है? आई वी के साथ शैल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और मतलब विल या शैल लगाकर उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देती है हमें। ओके, और इसमें हमें हैव लगानी है प्लूरल में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं नहा चुका होऊंगा, ये सेंटेंस चलो देख लेते हैं। ओके, वही पहले वाला ले लिया है, बस इसे इंटैरोगेटिव में चेंज कर दिया है। तो शैल आई टेकन, और टेकन से अच्छा आप कर सकते हैं हैव, राइट? शैल आई हैव बाथेड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से करना होता है आपको। समझ आ रही है? एक और सेंटेंस चलो इसका देख लेते हैं। जैसे कि हो गई, तुम कब पढ़ चुके होगे। ओके, पढ़ चुके होगी, तुम कब पढ़ चुकी होगी। तो इसे कैसे बनाएंगे? याद करो कैसे बनाएंगे। कब लिखा है तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लगाएंगे? कब। व्हेन विल यू हैव रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, इजंट इट? इस तरीके से बनते हैं हमारे इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप समझ आ गए होंगे। ओके, तो लेट्स सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इजंट इट? ओके, सो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, ओके, एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ओके, निश्चित समय के लिए हमारा जो निश्चित समय होता है, डेफिनेट टाइम जिसे हम कहते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस, और इनडेफिनेट टाइम के लिए हम लगाते हैं फॉर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। ओके, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब, हैज़ है प्लस बीन भी लगाते हैं, सॉरी बीन भी लगाते हैं। ओके, बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर। जैसे सारा हैज़ बीन गोइंग टू पार्क बाई ट्रेन। ओके, सारा ट्रेन द्वारा पार्क जा रही होगी। ओके, ओके, इसमें टाइम दिया होगा। ओके, टाइम इसमें दिया होगा। जैसे कि देखो, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, इनके लास्ट में कैसे शब्द आते हैं? रहा है,
इनसे ये मत देखो, रहा है, रही है, ये सब शब्द आते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरीके के शब्द आते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आते हैं, तो हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक चेंज दिया होगा, इसमें आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय दिया होगा। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 दिन से अपने नानी घर था, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, मैं मंगलवार को स्कूल जाऊंगा। इस तरीके के टाइम या डेज के नेम या इस तरीके के दिए होंगे, टाइम दिया होगा। निश्चित समय वो होता है जो रोज़ आता है, जो होता ही होता है, निश्चित है, वो उस टाइम पे होना ही होना। जैसे सुबह तो रोज़ होती है ना, रोज़ सुबह होती है, ओके। पर 2 घंटे 3 घंटे ये अनिश्चित समय होते हैं। कौन से 2 घंटे? सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, इजंट इट, ये होता है अनिश्चित समय, इनडेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम होता है जो रोज़ उसी टाइम पे होता है, उसी वक्त पे होता है, वो ही काम। जैसे कि सुबह रोज कितने बजे होती है? जितने बजे रोज होती है उतनी बजे ही तो होती है, इजंट इट। ये हो गया निश्चित समय। अनिश्चित समय वो हो गया जो उस समय से नहीं होकर दूसरे समय पे वो काम हो रहा है, जैसे कि 2 घंटे, 5 घंटे, इजंट इट। इस तरीके से ये हो गया अनिश्चित समय, ओके। जैसे कि कोई लाइक डेट हो गई, जैसे 1940 हो गई, 1857 हो गई, इजंट इट, इस तरीके की। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ओके, ये वाला, ओके। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ओके, एक वचन के साथ हैज़ बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन, ये याद रखना। हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस में है, ऑब्जेक्ट लगता है, ओके। और निश्चित समय अनिश्चित समय वो वाला लगता है, ओके। जैसे कि सारा हैज़ बीन गोइंग टू पार्क बाई ट्रेन, ओके, सारा ट्रेन द्वारा पार्क गई जा रही होगी, ओके, या जा रही होगी, इस तरीके से, ओके। इसमें सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे कि मैंने बताया, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के शब्द लगते हैं, ठीक है, इस तरीके के शब्द होते हैं लास्ट में, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे होते हैं? रहा है, रही है, रही, इस शब्द के लास्ट में ये शब्द होते हैं, और इसके साथ मतलब और इन टेंस में आई, वी, यू, दे, यानी कि जो प्लूरल होते हैं उनके सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगती है, ओके, हैव बीन लगता है, हैव बीन लगता है। फर्स्ट फॉर्म में B1 में ING ऐड हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया था, ओके। और प्लूरल में हमारा क्या होता है? प्लूरल में हम, जैसे कि इसमें लिखा था, प्लूरल में हम क्या करते हैं? सॉरी, सिंगुलर में, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर में हम क्या करते हैं? सिंगुलर यहाँ पे लिख देते हैं, सिंपल सा हैज़ लगाएंगे, V3 लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे, ओके, ये होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप देख लेते हैं हम सेंटेंसेस को, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को। इसके सेंटेंसेस जनरली बड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ओके, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसे कैसे बनाएंगे? आई हैव, क्योंकि क्या है? प्लूरल है, आई हैव बीन रीडिंग, ING लगेगी, क्या सेंस लगेगा? फॉर लगेगा, फॉर, क्योंकि आवर्स दिए, 2 घंटे दिए, ठीक है। कोई ये अनिश्चित समय दिया है, 2 घंटे, क्या मतलब कब के 2 घंटे? सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है इसमें, कब के 2 घंटे दिए, तो इसमें फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। जो चीज़ हमें पता है कि ये इस टाइम पे ही होती है, जैसे कि सुबह हो गई, सुबह हमारी कितने टाइम होती है? 4 बजे अप्रॉक्सीमेटली मानी जाती है, ओके, 4 बजे सुबह होती है, तो वो हमें पता है ना, 4 बजे ही सुबह होती है, ओके। ऐसा तो नहीं है कि शाम के 4 बजे सुबह होगी, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो जो चीज़ हमें पता है कि डेफिनेटली इस टाइम पे होती है, वो होता है निश्चित समय, जो उसी टाइम पे होता ही होता है, ओके। जो अनिश्चित समय होता है वो किसी भी टाइम हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से बात याद कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग लेसन, ओके, आई हैव बीन रीडिंग लेसन और लर्निंग लेसन, रीडिंग की जगह लर्निंग लिखते हैं।
लर्निंग लेसन फॉर 2 आवर्स। फॉर और सेंस लगाने इम्पॉर्टेंट है। अब एक सेंस का देख लेते हैं। सेंस का तुम इस स्कूल में 1970 से पढ़ रहे होगे रहा होगा। ये सेंटेंस, ये इसकी पहचान होती है। तो कैसे बनाएंगे? यू मतलब प्लूरल, यू हैव बीन, ओके, स्टडिंग इन दिस स्कूल। क्या लगेगा? सिंस सही है, फॉर लगेगा? क्या लगता है? कोई भी समय दिया हो, निश्चित समय, कि अरे हाँ ये 1940 निश्चित समय है, तो सिंस लगेगा। सिंस 1940 और 1970, सॉरी, ओके। इस तरीके से प्रयोग होता है, ओके। इस तरीके से हमारे ये सेंटेंसेस बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं जल्दी से इसी का। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, वही जो हैज़ होता है, वो हैज़ हैव होता है, वो पहले आ जाता है, ठीक है। हैज़ हैव होगा, वो पहले आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सिंस फॉर लगता है, आईएनजी लगती है, यही होता है। जैसे कि क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या बनेगा? हैज़ राम बीन स्टडिंग। सिंस आएगा, फॉर आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा? फॉर, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नॉट अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या राम 2 घंटे से नहीं, यहाँ पे नहीं लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देना है? नहीं। तो हैज़ राम बीन नॉट, हैज़ राम नॉट बीन, हैज़ राम नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से नॉट लग जाएगा। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों मैंने एक ही बता दिए, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट लगेगा, हैड बीन ही लगेगा, हैव बीन नहीं लगेगा, सिर्फ हैड बीन लगेगा, हैज़ बीन वैज़ बीन कुछ नहीं लगेगा। हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी लगेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी और निश्चित अनिश्चित समय वो होगा, ओके। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, ओके। तो जैसे कि इसमें देख लेते हैं, सारा ट्रेन द्वारा पार्क जा रही थी, ओके। सारा ट्रेन द्वारा पार्क जा रही थी, तो सारा हैड बीन, हैज़ हैव कुछ नहीं लगेगा, सीधे हैड लगेगा, ओके। हैड बीन गोइंग टू पार्क बाई ट्रेन, ओके, आईएनजी लगेगी, ओके, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पहले कैंसिल कर देते हैं, ओके। तो पास्ट परफेक्ट में हम देख लेते हैं जल्दी। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें क्या लगेगा? हैड बीन ही लगेगा, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी और निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा, ओके। निश्चित समय मैंने बताया कि जो हमेशा होता है, अनिश्चित समय जो किसी भी टाइम हो सकता है, समझ रहे हो? निश्चित समय समझो ना, डेफिनेट टाइम, जो उसी टाइम पे होता हो, ठीक है, जो उसी टाइम पे होता हो, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ये एस और पी मतलब सिंगुलर और प्लूरल है, ठीक है। देख लेते हैं हम कुछ सेंटेंसेस को, जैसे कि मैं इसके सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने बताया था बड़े होते, तो इसके लिए मैं 3 बजे से या 3 घंटे से लिख लेते हैं, घंटे से
खेल रहा था, रहे थे, रही थी। समझ आ रही है? तो कैसे बनेगा, इसके लिए दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। मैं 3 बजे से 3 घंटे से, ओके, 3 घंटे से खेल रहा था। तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। समझ रहे? इस तरीके से बनाने हैं। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम मोहन 8 दिन से यहाँ नहीं, नेगेटिव में देख रहे हैं, आ रहा था। तो मोहन हैड नॉट बीन कमिंग, सिंस लगेगा फॉर लगेगा, जल्दी तो सिंस लगेगा फॉर लगेगा। 8 दिन क्या है? 8 दिन क्या पता कौन से 8 दिन, आज के 8 दिन, कल के 8 दिन, कब के 8 दिन, तो क्या लगेगा? फॉर 8 days। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, ओके, सो ये नेगेटिव हो गया। अब हम देख लेते हैं इंटैरोगेटिव। ठीक है, इंटैरोगेटिव देख लेते हैं इसका। इंटैरोगेटिव जैसे कि क्या मैं मंगलवार से कॉलेज नहीं जा रहा था। क्या मैं मंगलवार से कॉलेज नहीं जा रहा था? तो क्या लिखेंगे हम? क्या मैं सबसे पहले क्या की लिखो, क्या मैं मंगलवार से कॉलेज नहीं जा रहा था, तो क्या होगा? हैड आई नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज, क्या होगा? मंगलवार है ना, हाँ, सेंस लगेगा। ठीक है, मंगलवार है, कोई दिन है, निश्चित दिन है ना, ट्यूसडे। ओके, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस ट्यूसडे। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हमारे इंटैरोगेटिव के हो गए। ओके, तो इस चीज़ के साथ हमने अपना पास्ट परफेक्ट का भी काम तमाम कर दिया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट भी ख़त्म कर दिया हमने, सब देखे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी देखा है। क्या लगता है पास्ट परफेक्ट में? जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जल्दी से। हैड बीन, ओके, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगती है हमारी, और सिंस निश्चित समय के सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर लगता है। ओके, तो आई होप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो आपको समझ आ ही गया होगा। हैड बीन लगता है, इतना तो पता है क्योंकि पास्ट है। ठीक है, ना हैज़ लगेगा ना हैव लगेगा, सीधे हैड बीन। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगानी है। निश्चित समय हो तो सिंस, अनिश्चित समय हो तो फॉर। निश्चित समय अनिश्चित समय मैं समझा चुका हूँ आपको, एक बार फिर समझाता हूँ। अगर कोई निश्चित समय है, निश्चित समय जो रोज़ होता है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है, तो सिंस। अनिश्चित समय है जो कभी कभी होता है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, वो हो गया, उसके लिए फॉर। ठीक है, मतलब उसका कोई निश्चित समय नहीं है ना, अनिश्चित समय खुद ही सोचो, उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, वो कभी भी हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये होता है हमारे निश्चित और अनिश्चित समय। ओके, तो इसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी धज्जियाँ उड़ा दी। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हमने पूरा ख़त्म कर दिया। ओके, लास्ट आ जाते हैं, लास्ट में, और इसके बाद हमारे टेंसेस बिल्कुल चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जल्दी से आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। जब गाइस लास्ट टेंस है तो जल्दी से आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे।
अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ओके, यहाँ पे हैव होगा, शैल हैव बीन, ओके, आई बी के साथ शैल हैव बीन, बगैर सबके साथ विल हैव बीन प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है? क्या होगा, सब्जेक्ट फिर विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे कि सारा, जैसे कि अगर हम इसे देखें, इसे वो करें फ्यूचर परफेक्ट में, तो सारा ट्रेन द्वारा सारा ट्रेन द्वारा पार्क 3 महीने से सारा 3 महीने से ट्रेन द्वारा पार्क जा रही होगी। तो सारा विल हैव बीन गोइंग टू पार्क बाई ट्रेन फॉर 3 मंथ्स। इसकी एक पहचान है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसमें टाइम मैंशन होता है। ठीक है, टाइम मैंशन होगा। जैसे आपने अभी तक इसमें एक से लेके आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के टेंस जो भी पढ़े हैं, अभी तक इनमें टाइम मेंशन नहीं था। कहीं भी देखो टाइम मेंशन है नहीं है, पर फ्यूचर परफेक्ट की एक पहचान आप बहुत अच्छे ध्यान रखना कि इसमें टाइम मेंशन होगा ही होगा। ठीक है, हर कीमत पे इस पर टाइम मेंशन होगा ही होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट के लास्ट में क्या आता है, जल्दी से देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लास्ट में क्या आता है? इसके लास्ट में आता है हमारा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे शब्द लास्ट में आएंगे तो समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, एक मिनट ये डिलीट करते हैं। जैसे कि आप लास्ट में इसमें देख सकते हैं ये सेंटेंस आते हैं, और क्या होता है आई वी के साथ, ओ माय गॉड, मुझे लगा पूरी वीडियो कैंसिल हो गई। ओके, सो एक्चुअली सम दिस बटन हैज़ प्रेस्ड, ओके, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखते हैं। आई एम सॉरी, ओके, आई वॉज पॉइंटिंग दैट पूरी जो वीडियो है वो कैंसिल हो गई। ओके, तो इसलिए ओ माँ निकल गया। ओके, तो जल्दी से हम देखते हैं इसमें क्या होगा। आई बी के साथ देखो, इसे बनाने का क्या नियम होता है। ओके, इसमें बनाने का नियम होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट की। ओके, तो क्या होगा, आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। ओके, प्लस आई एन जी लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगती है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगती है। ठीक है, ये आई एन जी है, समझ आ रही है आई एन जी। ओके, आई एन जी, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आई एन जी लगती है, और सिंस और फॉर लगता है, सिंस और फॉर लगता है। इतनी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। यहाँ से लिखते हैं सेंटेंस। चलो, यहाँ से सेंटेंस देखने वाले हैं हम किसके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। तो इसे कैसे करेंगे हम, इसे कैसे चेंज करेंगे, आई के साथ क्या लगता है, शैल हैव बीन। ओके, शैल हैव बीन प्लेइंग, आई एन जी लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, फॉर क्योंकि अनिश्चित समय है ये। ओके, इनडेफिनिट टाइम है, फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से होता है। ओके,
एक और बनाते हैं, जैसे कि तुम सुबह से पढ़ है, ठीक है, पढ़ रहे होगे, तो यू विल हैव बीन स्टडिंग, यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर या सिंस, जल्दी बताओ, फॉर या सिंस, क्या लगेगा इसमें, सिंस मॉर्निंग, ओके, क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। इंटैरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम जल्दी से, इंटैरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस पहले देख लेते हैं हम। क्या होगा, क्या, चलो नेगेटिव और इंटैरोगेटिव दोनों देख लेते हैं, ओके, नेगेटिव और इंटैरोगेटिव दोनों देख लेते हैं एक ही साथ। क्या तुम आधी रात क्या तुम आधी रात से नहीं पढ़ रहे होगे, ओके, से नहीं पढ़ रहे होगे, क्या तुम आधी रात से नहीं पढ़ रहे हो, तो इसे कैसे बनाएंगे, क्या तुम आधी रात से नहीं पढ़ रहे हो, इसे कैसे बनाएंगे, क्या तुम, ओके, तो तुम के साथ क्या लगेगा, विल यू नहीं, नॉट बीन, विल यू नॉट बीन रीडिंग सिंस लगता है, ओके, मिडनाइट, सिंस मिडनाइट, तो इसमें दोनों आपके कवर हो गए, इंटैरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। एक और देख, ओके, एक और देख लेते हैं हम अच्छा सा सेंटेंस, और फिर इसके बाद हम करते हैं इस सेशन को बाइंड अप, ओके, क्योंकि हमने सारे के सारे सेंटेंसेस देख लिए हैं अच्छी तरीके से, ओके। एक और कोई सेंटेंस देख लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, सो लेट्स सी, चलो पढ़ते हैं। क्या हम 4 दिन से यात्रा कर रहे होंगे, रहा होगा, यही पहचान होती है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओके। इसके बाद हम कर रहे हैं इस सेशन को बाइंड अप, तो जल्दी से हम देखते हैं इसको। हम आया है तो हम के साथ क्या लगेगा, शैल बी, हैव बीन, हैज़ बीन हमेशा लगेगा, BEEN वाला बीन, ओके, शैल हैव बीन ट्रैवलिंग, ING जोड़ेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस में है, फॉर 4 days, समझ आई, तो इस तरीके से, तो ये हमने सारे कर लिए हैं, तो इसके साथ हमने सारे के सारे टेंसेस को कर लिया है, समाप्त, ख़त्म कर दिया है हमने 12 के 12 टेंसेस को, सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट के देख लिए, पास्ट के चारों पार्ट्स देख लिए, फ्यूचर के चारों पार्ट्स देख लिए, मतलब टोटल हमने 12 के 12 टेंसेस को देख लिया है, ओके। अब आपका एक काम है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से, और it is not cancelling, right? Okay, now what you need to do, you have to take a screenshot of this tense chart, और आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, okay। So with this we come to an end, हमने सारे tenses को देख लिया है, that's it, bye bye, goodbye, have a good day, and yeah, if you love this video, don't forget to give this video a big thumbs up, और practice more and more टेंसेस, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। हमने पूरे अप्रॉक्सीमेटली 2 hours एग्जॉस्टिफाई कर लिए इन 12 टेंसेस को समझने में, ओके।
Okay, now if you do not practice, you are going to fail in this part as well. तो क्योंकि मैंने कहा था practice is very important portion of tenses. So that's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. Bye guys.